Hello, scholar. Hope this will find you in pink. Today, I'm going to start the second half of the chapter, The Last Spring. The title of the chapter is I Want to Drive a Car. Before starting today's session, I have some questions that you have to answer in your comment box from the previous chapter. So, my first question is who is the author of Lost Spring? And the second is, according to author, what was the garbage to parents and children? Okay, now I'm going to explain the next part of the lesson, The Lost Spring. I will learn to drive a car. That highlights the Mukesh character. You know who is Mukesh? Mukesh is the main character of this chapter, uh, who says that he want to become a motor mechanic. Though he belongs to a poor bangle maker family of Firozabad, but he has courage to dream big. It seems illusionary for him because from the generations they are busy in the making industries, and now Mukesh want to turn the life of their family, so he wanted to become a motor mechanic. Let's start the chapter. I will learn to drive a car, he answered, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage. Mirage, you know, मृग तृष्णा, जो बहुत सारी चीजें हमें बहुत पास दिखती हैं लेकिन एक्चुअली वो हमारे अप्रोच में होती नहीं है, वो बहुत दूर होती है, हमारी कैपेसिटी से बहुत दूर होती है, हमारी रीच से बहुत दूर होती है. His dream looms like a mirage amidst the dust of a street that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces. What is the meaning of furnaces? आग की भट्टी जिसके आगे बैठकर वो लोग ग्लास वेल्डिंग का काम करते हैं. वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. मुकेश कहते हैं कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. स्ट्रेट डिटर्मिनेशन था उसकी आवाज में, दृढ़ता थी. मेरी आंखों में आंखें डाल के वो कहता है कि मुझे लर्न करना है हाउ टू ड्राइव अ कार. दो उसका जो ड्रीम है वो एक मृग तृष्णा के समान है. क्यों? क्योंकि उसका जो फैमिली है पूरा जनरेशन से वो बैंगल मेकिंग के वर्क में एंगेज्ड है, और उसकी पूरी फैमिली कई पीढ़ियों से भट्टी के आगे, आग की भट्टी के आगे ग्लास को, कांच को पिघलाकर बैंगल्स बनाने का काम करते हैं. ऐसा लगता है वहां पे फिरोजाबाद में जो बैंगल्स बनती हैं वो एंटायर लैंड में, पूरे यूनिवर्स की वुमेन उन चूड़ियों को पहनती हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उन बैंगल मेकर्स फैमिलीज में से एक थी. नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light. और उनमें से, उनकी फैमिली में से कोई ये नहीं जानता था कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से डेंगी सेल्स माने बदबूदार सीलन भरी कोठरी में, छोटे छोटे रूम में, इतने हाई टेम्परेचर में, इतने अधिक तापमान में भट्टी के आगे काम कराना बिल्कुल गैर कानूनी है. वो एक अपराध है. दैट द लॉ इफ एनफोर्स, यदि नियम उन पर एनफोर्स किया जाए, डाला जाए, तो कुड गेट हिम ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो लगभग 20,000 बच्चे उन गर्म भट्टियों के सामने से विड्रॉ किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, जो अपने डे लाइट में घंटों उसमें काम करके अपनी आंखों को खराब कर रहे थे, उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी. मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुझे अपने घर ले जाने के लिए मुकेश जब राजी हुआ तो उसकी आंखों में बहुत खुशी थी. खुशी खुशी मुझे ले जाने के लिए राजी हुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, और जिसको उसने अपने घर के बारे में बताया गर्व से कि वो अभी अभी रीबिल्ड हुआ है, दोबारा उसका रिनोवेशन हुआ उसके घर का. वी वॉक डाउन hovels with crumbling walls. Sorry, we walked down stinking lanes, choking with garbage, past homes that remains hovels
with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in Primvale Estate. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वो खुशी-खुशी उनको ले जाने के लिए ऑथर को अपने घर तैयार हो गया और वो स्टिंकी बदबूदार गलियों में से होता हुआ जो चौक थी पूरी गार्बेज से कूड़े से भरी हुई थी और कुछ मकानों के पास से गुजरते हुए जो उनके अवशेष भर दिख रहे थे जो बहुत पुराने बने हुए थे, दीवारें टूटी हुई थी, डोर झूल रहे थे, वॉबली डोर्स लटक रहे थे, जिसमें खिड़कियां भी नहीं थी और बहुत सारे लोग ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल भीड़ की तरह उनमें उन घरों में कोएग्जिस्टिंग माने एक साथ रह रहे थे उसी पुरानी स्टेट में पुरानी अपनी व्यवस्था में। वो एक डोर के पास ऐसे ही घर के किसी डोर के पास रुकता है। आयरन का डोर होता है, उसे अपने बैंक की आवाज के साथ अपने फुट माने पैर के साथ ठोकर लगाकर खोलता है और अंदर की ओर ओपन करता है। We entered a half-built shack, in one part of it thatched with dead grass. Dead grass, you know, छप्पर, जो सूखी घास के छप्पर जो डाले जाते हैं उनको कहते हैं। जब हम एंटर हुए तो एक आधा बना हुआ शेक था, पार्ट था जिसके एक पार्ट में छप्पर डलाया हुआ था सूखी घास का। Is a firewood stove over which a large vessel of sizzling Spanish lives. और वहाँ पे कोने में एक आग का स्टोव था, फायरवुड, जिसमें आग जलाते हैं, चूल्हा आप कह सकते हो, जिसके ऊपर एक बड़ा सा लार्ज वेसल माने पतीला या भगोना चढ़ा हुआ था जिसमें पालक की पत्तियां सिजलिंग माने बॉइल्ड हो रही थी। ऑन द ग्राउंड जमीन पे इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, एक बड़े से एल्यूमिनियम की प्लेट में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल और कुछ कटी हुई सब्जियां भी रखी थी। अ फ्रेल यंग वुमेन माने दुबली पतली एक यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। वो पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, उनकी आंखों में धुआं भरा था, वो मुस्कुरा रही थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। शी वॉज क्वाइट अ यंग गर्ल। शी हैज बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, बट उसको एक बहू का दर्जा मिल गया था फैमिली में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की डॉटर इन लॉ। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो ऑलरेडी 3 आदमियों की, वहां पे रहने वाले 3 आदमियों की इंचार्ज हेड बन गई थी, एज अ बहू बन गई थी, उनकी टेक केयर करने वाली बन गई थी। वो 3 आदमी कौन थे? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, उसके पति जो मुकेश के बड़े भाई और मुकेश और उनके फादर यानी उसके फादर इन लॉ। When the older man enters, जब बूढ़ा आदमी माने मुकेश के फादर जब एंटर करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. वो धीरे से उठ के टूटी सी दीवार के पीछे चली आती है और अब चेहरे पर अपना घूंघट खींच लेती है और उसको बंद कर लेती है फेस को। वेल माने घूंघट। एज कस्टम डिमांड, जो उनकी रीति रिवाज थी, जो उनके घर का ट्रेडिशन था। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि वहाँ के डॉटर इन लॉज को, बहुओं को मेल एल्डर्स के सामने, जो बड़े बूढ़े उनके घर के मेल फिगर्स होते हैं, उनके सामने उन्हें चेहरे को ढकना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश बैंगल मेकर, और इसके केस में जो बड़े बूढ़े हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, मतलब मुकेश के फादर, वो इम्पोवरिश मतलब पुअर बैंगल मेकर्स हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सारे सालों तक उन्होंने बहुत मेहनत करी है। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो एक दर्जी की तरह से काम करते थे, देन ए बैंगल मेकर, फिर वो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस चूड़ियों को बनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपने घर को वापस से रिबिल्ड कराने, रिनोवेट कराने में असमर्थ हो गए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हो गए, मतलब नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और सिर्फ वो वही सिखा पाए जो वो खुद जानते थे, दैट इज द बैंगल मेकिंग, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला। वही उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था और वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। इट इज द कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी जी यानी कि जो उनके फादर है उनकी मदर।
वो कहती थी ये कर्म है, हमारा भाग्य है। Who has watched her own husband, जिन्होंने अपने हस्बैंड को देखा था गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, with the dust from polishing the glass of bangles, कांच की चूड़ियों पे जो पॉलिशिंग करी जाती थी उसकी डस्ट से वो बेचारे उनके जो हस्बैंड थे वो अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, वो कहती है क्या ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई जो लाइनेज है, जो पावर्टी की जो लाइन है, गरीबी रेखा, क्या हम उसको कभी ब्रेक कर सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं? शेम प्लाइज वो कहती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स के जाति में पैदा हुए, उनकी फैमिली में पैदा हुए। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ चूड़ियां ही देखी। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरीवेयर अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर जगह, घर में, बरामदे में, दूसरे के घरों में, दूसरों के बरामदों में, फिरोजाबाद की हर एक गली में क्या थे? सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां उन्होंने देखे थे। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the seven colors of the rainbow, or lie in a mound in unkept yard, are piled on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. सब जगह सिर्फ वो गुच्छे गुच्छे चूड़ियां पाइल अप करके रखी हुई थी, गोल्डन कलर की, ग्रीन कलर की, पर्पल, रॉयल ब्लू, जितने भी इंद्रधनुष में कलर होते हैं उनसे निकाले हुए कलरों से सारी चूड़ियां उन्होंने बनाई हुई थी, और वो पड़ी रहती थी ढेर ढेर के तरीके से यार्ड में। और व्हील ट्रॉली जो होती है जिसमें वो रख के ठेले में हाथ से पुश करते हुए यंग मैन ले जाकर गली गली में, पतली पतली गलियों में शहर की बेचा करते थे आवाज लगा के। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू lanes next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circle of bangles। और वहीं पे अंधेरे कमरों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, फ्लेम मतलब फ्लेम्स ऑफ फिकलिंग ऑयल लैम्प माने जो तेल डालकर डिबरी या दिए जलाते थे, उसकी जो लौ होती थी लपलपाती रहती थी, क्योंकि उसमें कोई शेड तो होते नहीं है। और उनके किनारे वहां पे बैठ के लड़के और लड़कियां, उनके फादर मदर वेल्डिंग करते थे, कांच के ग्लास की, कलरफुल ग्लास की वेल्डिंग माने उनको जोड़ने का काम करते थे उन दियो से, उन लैम्प से। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द टू लाइट आउटसाइड, और काम करते करते अंधेरों में उनकी आंखें उन अंधेरों में ज्यादा एडजस्ट हो गई थी रादर देन द लाइट आउटसाइड। दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और इसी वजह से ज्यादातर बच्चे जो थे उनकी आईसाइट खत्म होने लगती थी इससे पहले कि वो एडल्ट हो, बड़े हों। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glasses. एक बच्ची है यंग गर्ल सविता, जिसका नाम है, पिंक ड्रैप कलर की ड्रेस पहने हुए, वो एक एल्डरली वुमेन के साइड में बैठी हुई है और इसी तरीके से कांच के पीसेस की सोल्डरिंग माने जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ मशीन, और उसके जो हाथ हैं फटाफट एक जो मशीन के तरीके से, चिमटे की तरीके से मैकेनिकली काम कर रहे हैं, जैसे कि यंत्रवत, बस फटाफट फटाफट वो अपने काम को अंजाम दे रही है। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हैव मेक, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, अ स्पेशियसनेस इन मैरिज। और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्या इसे उसे पता था कि वो जो लड़की है कि वो जो बैंगल्स बना रही है, उन बैंगल्स बनाने में जो मदद कर रही है, वो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है वुमेन के, औरतों के सुहाग का, बहुत ही ऑस्पिशियस है, कीमती है, मैरिज में उसकी बहुत वैल्यू होती है शादीशुदा औरतों की जिंदगी में। इट वॉज डाउन on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist। और फिर ऑथर सोचती है कि बहुत जल्दी अचानक से वो दिन आ जाएगा जब उसके सर पर लाल रंग का घूंघट होगा, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी और उसकी कलाइयों में, रेस्ट में रेड कलर की चूड़ियां होंगी। She will then become a bride, फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी, like the old woman beside her who became
वन मेनी ईयर्स एगो, उस बूढ़ी औरत की तरह जिनके बगल में वो बैठी हुई है, जो कई सालों पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर wrist बट नो लाइट इन हर आईज। उसके हाथों में वो सुहाग प्रतीक चूड़ियां तो अभी भी हैं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन हर वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कि पूरी खुशियां मर गई हो, ड्रेन हो गई हो, उसकी सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। और वो कहती है कि कभी भी एक वक्त शेर भर खाना भी हमने नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी भी फुल मील नहीं खाया, पूरा भोजन नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, और यही है जो उसने कमाया है। हर हस्बैंड, उसके पति, एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड सेज, फ्लोइंग बियर्ड माने वो बढ़ी हुई दाढ़ी को छूते हुए वो बोलते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे कुछ नहीं पता सिवाय चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया है कि एक घर बना दिया है परिवार के रहने के लिए। हियरिंग हिम, उस एल्डरली मैन की बात सुनकर, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उन्होंने तो वो कर लिया अपनी जिंदगी में जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते पूरी जिंदगी। वो क्या है? ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कि उसके सर पे एक छत है, उसने छत बनवा ली है, माने घर बनवा लिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, वो शोर, वो रोना कि हमारे पास पैसा नहीं, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। कुछ भी करेंगे पैसे के लिए, सिर्फ उस बिजनेस को छोड़ के। वो क्या है? बैंगल मेकिंग है बिजनेस। नॉट इवन एनफ टू ईट, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। रिंग्स इन हर होम, उनके घर में सिर्फ रिंग्स हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और वो जो यंग मैन, यहाँ पे यंग मैन रिफर टू द मुकेश, वो लेमेंट माने विलाप, और वो अपने बूढ़ों के जो विलाप को देखकर वो विलाप कर रहा है, वो कष्ट से बोल रहा है कि कुछ भी करूंगा लेकिन अपना ये बैंगल मेकिंग का काम नहीं करूंगा, जिसकी वजह से एक वक्त का खाना भी पूरे से नहीं नसीब होता है, हर समय परेशानी रहती है लिक्विड मनी की। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, और वो समय के साथ साथ वो बदल गया है, उसे अपना ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करना है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद यंगस्टर्स अब मूव ऑन हो रहे हैं दूसरे कामों के प्रति। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। बट वो जो दूसरे बच्चे हैं, यंग मैन, उनके छोटे छोटे दिमाग, टॉयल माने परेशानियां, थकान सहते सहते उनके सारे एबिलिटी ऑफ ड्रीम, स्वप्न देखने की जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो सब खत्म हो चुकी। कोई भी चीज का शुरुआत करने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो चुकी है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, I asked a group of young men who have fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने कुछ यंग मैन के ग्रुप को जाके कहा कि तुम लोग अपनी सोसाइटी, अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो? वो व्यक्ति थे, ये वो बच्चे थे, यंग मैन थे, जिनके जो मिडिल मैन, जिनको हम दलाल कह सकते हैं, उनके हाथों की कठपुतली बन गए थे, उनके फादर और फोर्थ फादर। क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास अधिक पैसा नहीं होता तो कोई भी काम के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, तो बीच के जो जो दलाल होते हैं वो काफी मात्रा में हमसे इंटरेस्ट ले लेते हैं, हमसे पैसा ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं, और वो ब्याज का जो चक्कर होता है वो पूरी जिंदगी हमको निकलने नहीं देता है। वही उन सब के साथ होता है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, फिर वो यंग मैन कहते हैं अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बना भी ले, ऑर्गेनाइज हो भी ले, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हम लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस तंग करती है, मारती है, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और कुछ भी एलिगेशन, कुछ भी अनाप शनाप चार्जेस लगा के कि हम लोग गैर कानूनी काम करते हैं, हमको मार के खींच के जेल में भर देती है। दे सेज, वो कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारा कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो चीजों को अलग ढंग से देखकर हमारे लिए कुछ कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर,
उनके फादर भी उन्हीं की तरह से थक चुके हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो सिर्फ पॉवर्टी, गरीबी की उस बंधन की बात करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है, उसकी बात करते हैं। एंडलेस इन स्पाइरल, स्पाइरल क्या होता है, वाइंडिंग होती है ना, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है छल स्प्रिंग की तरह। उसी तरह उनकी गरीबी, उनकी पॉवर्टी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। उनके साथ जो इनजस्ट होता है ना, जो ये अन्याय होता है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ती है। लिसनिंग टू देम, उन सबकी बातें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैंने देखा, मुझे समझ में आया कि दो तरीके की दुनिया है। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। एक तो है जो गरीबी के बर्डन से झुकी हुई है और उनके पास उनके काम का, उनके ट्रेडिशन, उनके कास्ट का स्टिग्मा लगा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है, जो वो लेके पैदा हुए हैं। एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। और जो दूसरा है वो बड़े लोगों का, जिनको बोला जाता है हायर सोसाइटी वाले, साहूकार हैं, दलाल है, पुलिसमैन है, कानून के रखवाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड राजनीतिक पॉलिटिशियंस हैं। तो दो वर्ग हैं समाज में, एक निचला और एक ऊपर का, मतलब लोअर एंड हायर। लोअर में सारे ये जितने वर्कर्स होते हैं छोटे मोटे, जैसे कि बैंगल मेकर्स वगैरह, वो आते हैं, और हायर में ये सारे लोग आते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन दोनों ने मिलकर, कुछ ने उन्हें तकदीर बनाकर उसकी जिंदगियों में वो पैदा हुए, जो कास्ट में वो पैदा हुए हैं, उनके घर, उनके फैमिली, उनके ट्रेडिशन ने उस पर बोझ लाद दिया है। और दूसरे ये जो हायर सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने इम्पोज कर दिया है उनके ऊपर इस बोझ को, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो सारी जिंदगी नीचे नहीं रख सकते, जिनसे वो सारी जिंदगी निजात, छुटकारा नहीं पा सकते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर होते, अपनी कंडीशन को लेके जागरूक होते, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को, अपने इस ट्रेडिशन को, अपने इस कंडीशन को प्राकृतिक रूप से, नेचुरली तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि यही हमारा भाग्य है, यही हमें करना है, ऐसे ही मेरे लाइफ स्टाइल है, जैसे कि उनके फादर्स ने एक्सेप्ट किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग हटके करने का मतलब हिम्मत दिखाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनके ग्रोइंग अप होने पर डेयरिंग, हिम्मत, करेज, इन सब का कोई रोल नहीं था। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। और जब मैंने देखा कि मुकेश के अंदर ये थोड़ा सा सेंस है, ये डेयरिंग एटीट्यूड उसका है, उसके अंदर हिम्मत है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो वापस से कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। एंड ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो एक गैराज में जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसके घर से गैराज बहुत दूर है। आई विल वॉक, तो वो कहता है कि नहीं, मैं चल के जाऊंगा। ही इंसिस्टेड, वो कहता है डिटर्मिनेशन के साथ। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट। मैंने उससे पूछा क्या उसे एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना देखा है, तो वो अचानक से शांत हो जाता है और कहता है नो, नहीं, उसने ऐसा नहीं देखा। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन में घूरते हुए वो बोलता है, नजरें झुका कर, तो नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसकी वो छोटी सी जो वर्ड्स थे, जो उसके मुंह से पूरी तरीके से निकल भी नहीं पा रहे थे, मर्मरिंग साउंड था। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, और उस मर्मरिंग साउंड में एक एम्बेरसमेंट माने शर्मिंदगी थी, शर्म थी, दैट ही हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन उसको पछतावा नहीं था। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, लेकिन वो अपने इसी ड्रीम से कंटेंट माने संतुष्ट था, सिर्फ कार चलाने की ड्रीम से, जो कि उसने देखा है शहर की गलियों में घूम रही हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से भी उड़ते हैं।
So this is the chapter that I have finished. I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जिसे नहीं आया है, क्या चीज़ है, what they want to learn again, what the problem they are facing, you put in the comment box. Kindly, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो सब्सक्राइब, like and share my channel with your family and friends. Thank you.